کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم کتنا لاک ڈاؤن میں رہے ہیں؟ تقریباً 5 ماہ چرچ بند رہے، خدا کے گھر بھی بند رہے، لیکن آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا میں تازہ مسا دینے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد اس نے اپنے خادم کو بھیج دیا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے درمیان میں آئیں گے پاسٹر ایمانوئل اسلم صاحب جو ہمارے لیے خدا کے کلام کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ کی زوردار تعریف۔ معلوم آپ گرمی کی وجہ سے آپ کے چہروں پہ اداسی ہے یا ویسی آپ اداس ہے؟ چلے میں کوشش کروں گا میں آپ کا ذرا وقت نہ لوں۔ اور میں جب آج کے لیے دعا کر رہا تھا آج سے کافی صبح ارلی مارننگ میری آنکھ کھل گئی اور خدا نے میرے ساتھ کلام کرنا شروع کیا۔ بہت صبح کا وقت تھا، میں نے کوشش کی کہ میں سو سکوں تاکہ میں اچھے طور سے جا کے منادی کر سکوں، لیکن میں سو نہ سکا۔ میں اٹھا، میں نے دعا کرنا شروع کی، میں نے خدا نے جو میرے ساتھ کلام کیا میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کی، اور میں کہہ رہا تھا خدا، اور جب میں دعا کر رہا تھا خدا کا روح اس کلام کو بار بار میری روح پر رکھ رہا تھا جو آج صبح میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میں ساتھ نکالے گا متی کی انجیل، The Gospel of Matthew 25 chapter 25واں باب، متی کی انجیل اس کا 25واں باب، اس کی پہلی آیت سے بڑی مشہور تفصیل ہمیں نظر آتی ہے، اور صبح ہم دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح مجھے، آپ کو، کلیسیا کو اور ایمانداروں کو کیا کہہ رہا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آہستہ آہستہ جاؤں گا، اور میں صبح کو کچھ خاص باتیں ٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ جی نکالیے سامنے، اوکے۔ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 قواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مچھلیں لے کر دلہا کے استقبال کو، واہ، کس کے استقبال کو؟ چرچ آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا میں اور آپ اس بات کے منتظر ہیں کہ میرا اور آپ کا دلہا آنے والا ہے اور مجھے اس کے استقبال کے لیے نکلنا ہے؟ آج میں نے پاکستان کی کلیسیوں میں ایک بہت بڑی جو کشمکش دیکھی ہے، ہمارے لیے گھر سے نکل کر ٹائم پہ چرچ آنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں میرا وہاں دولہا ہے، تو میں اور آپ کیسے لاپرواہی کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیسے سستی کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیسے بور فیل کر سکتے ہیں۔ جب میں کہیں بھی خدمت کے لیے جاتا ہوں اور جب میں نے واپس آنا ہو کہ میری بیوی میرے بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی میرا روز کا کام ہے، آپ کو آ کے مجھے پک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں سے ٹیکسی لوں گا، میں گھر آ جاؤں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ لیکن جیسے میں ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا ہوں، یہ مجھے سرپرائز دے کے یہ ہمیشہ ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں، اور کیوں؟ میرا استقبال کرتے ہیں۔ میں کچھ منع بھی کروں لیکن اس کے باوجود یہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے، مجھے لینے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یسوع نے ایک تمثیل کہی، اور آج کچھ دیر کے لیے ہم اس تمثیل پہ غور کریں گے کہ میں پھر دوبارہ رپیٹ کروں گا، خدا میرے اور آپ کے ساتھ یا کلیسیا کے ساتھ کیا کلام کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو کس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی کتنی قواری ہے؟ اوکے، جو اپنی مچھلیں لے کر کس کے لیے نکلی تھی؟ واہ! اب ان 10 کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی فوکس تھا، ہم نے دولہے کا کیا کرنا ہے؟ واہ! اوکے، پھر کیا ہوا؟
लेकिन दूसरी आयत आप देखो, ये गस की गस क्या है? वो आदमी है, उनका कैरेक्टर जरा देखें, उनकी जिंदगी पे गौर करें। वो दुआगी किस चीज को प्रेजेंट करता है? पाकीज़गी को, कि ये 10 की 10 पाक जिंदगी गुजारी थी, ये 10 की 10 इस्तिकबाल के लिए निकली थी, ये 10 की 10 इस बात के लिए तैयार थी कि दूल्हा आएगा और हमने उसका क्या करना है। मैं फिर दोबारा भी करूंगा, जो वर्जन है, जो दोबारा पढ़ना, ये किस चीज को जाहिर करता है? सुनेगा, शादी किसकी होती है? जो दुआगी हो, जिसने अपने आप को किसी के लिए पाक और लग रखा हुआ हो। और मैं आज सुबह आपको ये दूंगा, नौजवान बेटियों को और बेटों को, जब तक हमारा किसी से ठीक कनेक्शन ना हो जाए, माँ बाप जब हमारा किसी से एंगेजमेंट ना कर दे, रिश्ता ना कर दे, मुझे और आपको गलत ताल्लुकात से बचना हो। और आपको मालूम है, कैलिफोर्निया सैलरी बहुत सारे नौजवान बेटियों की जिंदगी को क्या कर दिया? सो पहली बात, मुझे और आपको ग्लोरी टू बी गॉड, चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, सुनिएगा, पाकीज़गी का कलर किसी मुल्क के साथ नहीं है, पाकीज़गी का कलर रूह यस्सु के साथ है। अगर पाकू मेरी जिंदगी में है, तो मैं और आप कहीं भी क्यों ना हो, मैं और आप खुदा के लिए पाक जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन 10 की 10 वाली थी, ये पाक जिंदगी गुजारी थी, ये 10 की 10 दूल्हे के इस्तिकबाल को। लेकिन फर्क क्या था? इन सब के पास मछली भी थी, लेकिन इन 10 में फर्क क्या था? 5 में 5 क्या थी और 5? अच्छा, अगर किसी को बेवकूफ कहे तो उसको कभी अच्छा लगेगा? आप मुझे अच्छा, आप बेवकूफ को भी बेवकूफ कहे तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा है कि नहीं है? सो यहाँ क्या कौन कह रहा है? सी कह रहा है कि 5 क्या है? बेवकूफ। और 5? ओके, आप इन 10 कुआरियों में कौन सी बनना पसंद करेंगे? श्योर? क्या बाकी? तो फिर आप जरा अपनी जिंदगी पे गौर करें कि आपने किस कुआरियों की तरह जिंदगी गुजारी है या गुजार रहे हैं। हो सकता आप जल्दी से कहें जी अक्लमंदों की तरह, लेकिन बात का ऐसा नहीं होता। वक्त को पालूस के खत में क्या लिखा? वक्त को क्या करो? सो यहाँ 10 कुआरियां हैं और 5 क्या है? बेवकूफ और 5। सो कोई नहीं चाहता कि मैं बेवकूफ कुआरियों के कैटेगरी में आऊं। हर कोई शख्स, चाहे वो बेवकूफ भी हो, वो अपने आप को क्या सिखाता है? अक्लमंद। और सुलेमान की इंसान की किताब में से एक आर्ट मेरी बड़ी फेवरेट है, सुनिएगा। सुलेमान ने कहा, जब तक तू खामोश है तू अक्लमंद है। जब तक तू क्या है? मैंने कई लोगों को समझा ये बड़े अक्लमंद है, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया उनकी बेवकूफी बहना शुरू हो गई। ऐसा होता है कि क्यों जी मास्टर साहब, आप सोचते यार मैं उसको बुलाता ना समझ रहा था, लेकिन इसकी बातों से जाहिर हो गया कि ये क्या है। ओके, सो यहाँ क्या लिखा है? उनमें 5 बेवकूफ और 5। सो बाइबल में एक और एग्जाम्पल मैं सारा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास और आपके पास टाइम नहीं है कि मैं आपको हवाले निकाल के दिखाऊँ, लेकिन मैं आपको मत्ती की इंजील 7वें बाब में यीशु ने कहा, क्या कहा? बेवकूफ कहाँ घर बनाता है और अक्लमंद कहाँ बनाता है? चट्टान पे घर कैसे बनता है? यीशु ने कहा, जो मेरा कलाम सुनकर उस पर वो कैसा है? ओके, आप कितने सालों से आपका कलाम सुन रहे? 10 साल, कईयों को 5 साल, कईयों को 15 साल। तो फिर आपने देखना है कि आपने कहाँ घर बनाया है। बात जब हमारी कलाम सुनते हैं, सुनेगा, कलाम सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, सुन के उस पर अमल करना सबसे बड़ी बात है। सो बाइबल किसको अक्लमंद कहती है? जो कलाम सुनता है या जो कलाम सुनाता है?
یا نمبر 3 جو اس کلام پہ آج آپ کو 2 قسم کے لوگ چرچز میں منسٹری میں بہت ملیں گے جو کلام سنانا بہت پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ کلام سننا پسند کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کلام پر عمل کرتے ہیں. اور اس لیے خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ محض. سو موسٹلی ہم کیا ہیں؟ سو آج صبح میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا بیوقوفوں کی طرح زندگی نہ گزارے. خدا کی کلیسیا، خدا کے لوگ عقل مند نظر آنے چاہیے. اور وہ عقل کیسے ظاہر ہوگی؟ جب میں اور آپ خدا کے کلام کو سن کر اس پہ کیا کریں گے؟ سو فیصلہ آپ کے کرنے، میں آپ کو جج نہیں کرتا، لیکن آپ ذرا سوچیں ہر ایک بار جو آپ کلام سنتے ہیں اس پہ کتنا غور کرتے ہیں کہ جی پاسٹر صاحب نے آپ یہ پریچ کیا، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے خدا کے کلام کی تابع داری کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا اور خدا نے کلام کیا کیا؟ اٹھ اپنے رشتے داروں ناطے داروں کو تو میں تجھے کیا دوں گا. سو خدا نے کلام کیا. اگر ابراہیم کہتا خدا پریز گاڈ تو نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، تو نے میرے ساتھ بات کیا ہے، پریز دی لارڈ، اب میں اپنے خاندان کے ساتھ رہوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم نے میرے ساتھ کلام کر دیا ہے. اب تم مجھے برکت دے گا، مجھے قوموں کا باپ بنائے گا. نہیں عزیزو، جب تک ابراہیم نے خدا کے کلام کی تابع داری نہ کی، کلام اس کی زندگی میں پورا نہ ہوا. بہت سارے لوگ کلام سن کے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان صاحب ذرا دعا تو کریں. حالات کیا ہو جائے؟ سنیے گا، حالات صرف کلام سن کر یا دعا کروا کے نہیں ہوتے. حالات تب ٹھیک ہوتے ہیں جب میں اور آپ اس کلام کی کیا کریں گے. That's very simple. For example, میں بائبل میں سے بہت جلدی سے آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. خدا نے ابراہیم سے کہا نکل، تو اس نے تابع داری کی کہ نہیں؟ وہ سوچ میں 75 برس کا ہوں، خدا میں تو بزرگ ہو گیا ہوں، کیا میرے لیے ابھی نکلنا مشکل ہے؟ میں تیری عبادت کروں گا لیکن مجھے میرے خاندان میں کیا کروں؟ کیا ابراہیم یہ کہہ سکتا تھا خدا اس بڑھاپے میں میں کہاں جاؤں گا؟ کون مجھے سنبھالے گا؟ میری تو اولاد بھی نہیں ہے. سنیے گا، Praise the Lord. کتنے لوگ ہیں جو بعض کا پریشان ہوتے ہیں ہمارا بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا. بس صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا پر ایمان لائے ہیں اور خدا کی تابع داری کر رہے ہیں تو آپ کے بچے آپ کا سہارا بنے یا نہ بنے، لشکروں کا خدا آپ کا ضرور سہارا بن جائے. وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کے لیے مہیا بھی کرے گا. لیکن کب اور کیسے؟ جب میں اور آپ کلام کی کیا کریں گے؟ اور اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. سو خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم صرف کلام سنانے والے ہوں. اور اس لیے رومیو کے خط میں پالوس نے کہا تو جو اوروں کو سکھاتا ہے خود. میں پچھلے دنوں کانفرنس میں تھا، پاسکل کانفرنس میں کہتا ہوں جب ہم خادم نبی کے لیے کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں جی خدا خوشی سے دینے والوں کو، ہم کلیسیا کو کیا کہتے ہیں؟ انکریج کرتے ہیں خوشی سے دیں، زیادہ سے زیادہ دیں. تو میں کہا خادموں جب ہم اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہم کتنا دیں؟ ہم کیسے دیں؟ کیا ہماری جیب سے بھی صرف 10 کا نوٹ نکل رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر خدا کا گارنٹی دو تو اگر میں اور آپ اس کلام کی تابع داری کریں گے تو خدا کے جو کلام کے وعدے ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہوں گے. سو بیوقوف کہاں گھر بناتا ہے؟ اور جب بارش آتی ہے طوفان آتا ہے تو وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلام سن کر عمل نہیں کرتے. جیسے دکھ آتے ہیں، مشکلاتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، چرچ آنا، دعا کرنا، جی کیا فائدہ چرچ آنے کا، دعائیں کرنے کا؟ آپ نے تو سوچا تھا سب کچھ کیا ہو جائے گا ٹھیک، لیکن جو کلام سن کر عمل کر کے سنے گا چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو،
وہ حالاتوں میں بھی قائم کرتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد چٹان یسوع مسیح کے ہوا ہے. دیکھو ہماری زندگی میں بڑے مشکل حالات آتے ہیں، آتے تھے، لیکن ہم نے کلام کو دیکھا اور اسی میں قائم گئے. اور سنیے گا ہر طوفان میں، بعض کا ہم صرف طوفانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آج صبح میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے ہر طوفان میں یسوع کو آتے ہوئے دیکھا. جب شاگرد کشتی میں ایک طوفان آ گیا، پہلے انہوں نے طوفان دیکھا، پھر اسی طوفان میں انہوں نے کس کو آتے دیکھا؟ ہم سوچ گئے جب صرف پرستش ہوتی ہے تبھی یسوع آتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا تصور کریں، شاگرد کشتی میں تھے، وہ کوئی پرستش نہیں کر رہے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہا نہیں گئے، بلکہ وہ خوف زدہ تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، اور وہ کیا سوچ کے تھے ہم کیا ہو جائیں گے. تو یسوع اس طوفان میں اترا. کیا آپ کا ایمان ہے؟ سنیے گا، اگر اس نے مجھے اور آپ کو کہیں بھیجا ہے تو وہ کہیں ایسی جگہ پہ بھیجے گا نہیں جہاں وہ خود نہ آ سکے. اس کے پاس کشتی بھی نہ ہو. Praise God. کشتی لے کر شاگرد چلے گئے، اور جب یسوع کے پاس پہنچنا چاہا تھا وہاں کوئی کشتی بھی نہیں تھی. ہماری تو یہ پرابلم ہے. سنیے گا غور سے، اگر ہم نے چرچ بھی جانا ہے، پاکر صاحب ذرا مجھے پک کر دیں گے تو پھر میں چرچ آ جاؤں گا. اگر آپ مجھے پک نہیں کریں گے تو میرے لیے چرچ آنا ایسا ہو گیا کہ نہیں ہو. جی اگر آپ میز بھیجیں گے، بس بھیجیں گے تو ہم عبادت میں چلے جائیں گے. سنیں گا، جب یسوع اس جھیل پر پہنچا طوفان تھا تو یسوع نے یہ سوچا ہوگا اب میرے لیے شاگردوں کے پاس پہنچنا کیا ہے؟ مشکل ہے، کشتی بھی نہیں ہے. سنیں گا، جب اس نے مجھے اور آپ کو بچانا ہے، پہنچنا ہے، اسے کسی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ پانیوں پہ چل کے بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس پہنچ جائے. لیکن ایک اور خاص بات، اسی طوفان میں پترس نے ایک کام کیا. یسوع چل کر آیا، پترس کشتی سے نکل آیا، اور 11 کے 11 کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آج کلیسیا کی یہی حالت ہے. 99 چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں، مشکل سے ایک نکلتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں جی پترس ڈوب گیا. سر پترس ڈوبا ہی نہیں، پترس پانی میں چلا. اس خوف سے نکلا، اس نے اپنی آرام کے جگہ کو چھوڑا. پاس کر کم اپنی آرام کے جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہمارے لیے صبح بستر چھوڑنا مشکل ہے، تو پھر ہم اسی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ آج کل لوگوں کے لیے صبح بستر سے نکل کے دعا کرنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ دعا کو ہم چرچ میں آ کے ہاللویا پریز دی لارڈ، پورا ہفتہ میں یسوع کو منہ بھی نہیں لگایا، اس کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ نہیں کیا، اور سنڈے کو آ کے ہم ہاتھ بھی کھڑے کر رہے ہیں، ہم غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن سنیے گا کیا ہوا؟ جو عقل مند ہے وہ کہاں گھر بناتا ہے؟ میں آج صبح آپ کی یہ حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بے وقوفوں کی طرح نہیں، بلکہ جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اتنی عقل مند ہے، ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ آ جائے اور سوچ کے اس کو کیسا انویسٹ کریں. لوگوں سے پوچھ کے جی مجھے مشورہ دیں، میں یہ پیسہ کہاں انویسٹ کروں. میں کوئی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا، میں بڑی سمجھداری سے پیسے کا کیا کرنا چاہتا ہوں. اچھا ہم اتنی عقل مند ہے، 1 لاکھ روپے کے لیے ہم بڑا پلان کریں، بڑا پوچھیں. جو 70-80 سال کی زندگی ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی پلان نہیں کہ میں یہ زندگی کیسے گزاروں، کس کے لیے گزاروں، کہاں گزاروں، کیونکہ زندگی صرف ایک دفعہ نہیں. یہ سچ ہے کہ سو خدا نے کیا کہا؟ عقل مند کون ہے؟ جو صرف کلام سن کر آپ سننے والے یا عمل کرنے والے؟ مجھے پتا فوراً کہیں گے جی عمل کرنے والے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ لیکن آج صبح میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب بھی کلام سنیں اس پر عمل کریں تو ہم کیا بن جائیں گے. اوکے، اب ان 10 قوالیوں میں فرق کیا تھا؟ وہ قوالیاں بھی تھیں، ان کے پاس مشورے بھی تھیں، وہ ان کا فوکس ایک تھا، ان کا مقصد ایک تھا. وہ کس کس اقبال کے لیے نکلی تھی؟ دودھا کے. لیکن کیا لکھا ہے 4 آیت میں؟ کیا لکھا ہے؟ لیکن کس کے آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلے کو لے لی مگر تیل
तेल। अब इनकी बेवकूफी कहां से जाहिर हो गई है? ये ऐसा ही है कि तुसी सिलेंडर ले जाओ तो गैस ना हो। क्या ख्याल है? आप किसी पिकनिक में जाएं, सिलेंडर ले जाएं, सारा सामान खाने पीने का आपके पास हो और सिलेंडर में गैस ना हो, और जिसके जिम्मे ये लगा कि आपने सिलेंडर लेके लाना है, तो सारी चर्च को किस पे गुस्सा आएगा? कि सिलेंडर के जी उसी के सिर्फ कैसे सिलेंडर लेना है कि कैसे गैस पर आके देना? क्या ख्याल है आपका? वो कहेगा जी पादरी साहब आपने तो मुझे सिर्फ क्या कहा था, लेकिन जो अक्लमंद होगा वो ये कहेगा नो, अगर मुझे सिलेंडर लेके जाओ मुझे ये भी चेक करना होगा कि सिलेंडर में गैस है। लेकिन जो बेवकूफ होगा वो क्या करेगा? जी पादरी साहब ने सिलेंडर कैसे मिल जा रहे? तो वो सोचेगा, वो खुश होगा, मैंने पादरी साहब की क्या की है, क्या की। लेकिन पादरी साहब का पूरी कलीसिया का दिमाग क्या हो जाएगा? अपसेट। तुमने हमारी पिकनिक क्या कर दी है? खाने का सामान तो है, एक शख्स की बेवकूफी से कितने लोग सफर होंगे? ओके, सो ये बेवकूफ क्यों थी? क्या वो निकली नहीं थी? सिर्फ एक चीज ने उनको बेवकूफ बना दिया, और वो क्या था? मछली भी उनके पास थी, लेकिन अपने साथ कुपियों में तेल, लेकिन चारक निकल गए, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में जो हमेशा हम यहाँ तेल को किसको पेश करेंगे? यहाँ तेल का क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा? मसाल, ओके गुड। इसके अलावा कलाम, ओके। इसके अलावा देखो जी, तो मैं ही नहीं लगा तेल तो फेंक के साथ तेल निकल गया ना, हमको फायदा। फिर चर्च आना हर संडे बेकार, प्रस्तिश करना बेकार, कलाम सुनना और सुनाना, संडे स्कूल में मिनिस्ट्री करना, क्योंकि जिस चीज को हमारे पास होना चाहिए अगर वो ही नहीं है तो फिर मेरी मिनिस्ट्री का कोई फायदा नहीं, मेरे चर्च जाने का भी कोई फायदा नहीं। सुनिएगा, सिर्फ चर्च जाने से, सिर्फ चर्च में खिदमत करने से, सिर्फ चर्च में गाने बजाने और प्रसादी करने से हम खुदा की बादशाह में नहीं जाएंगे। क्या ये 10 खिदमत करी थी? क्या ख्याल आपका? वाह, वो गैर ज़ुबान में बोलती थी, ये लिखा है। क्या वो वर्शिपर थी? क्या ये लिखा है यहाँ? क्या वो कलाम सुनाने वाली थी? क्या वो नबूवत करने वाली थी? क्या वो हीलिंग करने वाली थी? क्या जस्ट वर्शिप? वो तो सिर्फ गवाही ही थी, वो तो सिर्फ दूल्हे के इस्तकबाल को निकली थी। लेकिन उन्होंने मछलियों के साथ क्या लिया? सो आज हमें देखना होगा क्या हमारी कुपियों में तेल है या नहीं है। कुछ ने कहा मसा, ओके। कुछ ने कहा जी कलाम। कोई और मुझे बताएगा? पाकू, ओके। कलाम पर अमल, कलाम की ताबेदारी, ओके गुड। मैं आपकी तरह चाका मार गया है बोलने का, ओके। आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि किसी हद तक, लेकिन इस कलाम को मोस्टली जब हम देखते हैं यहाँ तेल को हम दूध कुदस या मसा से तशबीह देते हैं। अब सुनिएगा गौर से, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है, तेल जो है वो मसे को या रूह कुदस को क्या करता है, पेश करके। जब आप कुछ किताब पढ़ें, पुराने नामा में देखें कि जो तेल है वो रूह को या अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था, एक बात ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया, मैं इस पर गौर कर रहा था। मैं और आप रूह कुदस को खरीद नहीं सकते, मैं और आप मसीह को भी खरीद, क्योंकि अक्लमंदों ने क्या कहा, जाकर क्या कर लो। तो फिर क्या है, क्या मैं आप रूह कुदस खरीद सकते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। चले, जब पतरस के वसीले ईमान की किताब में मौजूद हो गए थे, तो एक जादूगर आया, उसने कहा वाह, मुझे
भी पतरस के रूल को चाहिए और वो बहुत सा फैसला लेकर पतरस के पास आया और उसने कहा मुझे रूल को चाहिए। उसने कहा तुझ पर कर्ज है क्योंकि खुदा की बख्शिश को तूने पैसों में नापने की कोशिश की। और सुनिएगा आज भी बहुत सारे ईमानदार हैं जो रुपयों से खुदा की बरकत को, ऐसा है कि नहीं? ऐसा पढ़ो हम 500 नोट के साझा से दुआ करो कि खुदा शांति दे। अच्छा हम भी इतने सादा खादम है असी भी 500 वाली कर देंगे। We cannot buy blessing। मैं और आप बरकतें खरीद नहीं सकते। क्या अब्राहम ने बरकत खरीदी? क्या ख्याल है आपका? नो। मैं आपको मेरी बात समझ ज़्यादा मुश्किल मुनादी को नहीं करा। हम में कितने लोग हैं जो बरकत खरीदते हैं? वो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन सब हमारे सब का यही हाल है कि नहीं? 10 रुपये हदिया डाल के कहकर खुदा 10,000 रुपया दे। So we cannot buy blessing। आपको मालूम है यूट्यूब ने 100 से बरकत खरीदी रोटी खिलाकर, तो क्या उसको बरकत मिलती? क्या ख्याल आपका? हम बात करके पागल सर मुझे रोटी खिलाएंगे, इसके से मुझे क्या मिलेगा? अच्छा फिर हम कह रहे थे चटनियाँ चीज़ा ना इन लोग जाना। सुनिएगा अगर मैं खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं करा, मैं खादमों को बूफे भी खिला दूँ, वो ब्लेस है। क्योंकि मैं और आप सॉरी खादम कुछ खादम शायद उससे नाराज हो साढ़े रोटियाँ पानी खिला लेंगे, लेकिन दिस इज अ बिब्लिकल टीचिंग। दिस इज बिब्लिकल टीचिंग। आज हर चैनल क्या कहता है? हमें दयाकी दें, हमें हदिया दें, हम आपके लिए क्या चाहेंगे? ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। कैन यू बाय द ब्लेसिंग? क्या खुदा की बख्शिश को खरीद सकते हैं? हाँ, देने से जब हम बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद के खुदा को देते हैं, खुदा उसके बदले हमें रिटर्न करता है। लेकिन बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद के, सो अक्लमंदों ने क्या किया? अपनी कुप्पी में, अच्छा कुछ खादम कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुछ खादम कहते हैं यहाँ जो तेल है रूह कुदस को जाहिर कर रहा है कि एक वक्त था इन 5 में बड़ा रूह था, लेकिन जैसे दूल्हे को आने में देर लगी उनका तेल, उनका रूह कुदस क्या हो चुका था? बुझ चुका था। और इवन पौलुस ने कहा रूह को बुझने, क्यों हमारा रूह कुदस हर एक बार 2 घंटे के लिए जोश में आता है और पूरा हल्का क्या होता है? अगर तो चर्च में भी आके पूछा जाता है, आप कहेंगे जी कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। कोई जायका इतनी कोशिश करते हैं कि आपकी कुप्पियों में तेल आए और आपकी मसले क्या होना शुरू हो जाए। वो कहते हैं जी तालियां बजाएं, वो कहते हैं जी ऊंची गाएं, ऊंची दुआ करें, क्योंकि उसको पता है कि लोग बुझे हुए हैं। लेकिन सुनिएगा, मेरे शोर से लोग जलना शुरू नहीं होंगे जब तक रूह कुदस उनकी जिंदगियों में नहीं आएगा। मैं आपको खड़ा करके आपके हाथ आसमान की तरफ खड़े करवा के आपसे परफॉर्मेंस करवा सकता हूँ, लेकिन हकीकी परस्तिश तब होगी जब कोई पर्पस से आपको खड़ा ना करे, आसमानों से आप उसको देखें और उसकी हुजूरी में खुद ब खुद खड़े हो जाएं और उसकी स्टाइश, उसकी परस्तिश, उसकी हम, उसकी नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी देना शुरू करें। मशरूम में क्या होगा? तेल हो। सो मैं आगे जाके बताऊंगा तेल क्या है। सो मैं ये कहूँ जरा सोचे, तो जो अक्लमंद ठीक मगर बेवकूफ़ों को क्या कहा? अब 6 आयत में क्या लिखा? लिखा 5वें में जब दूल्हे ने ढेर लगाई तो सब क्या होने लगी? ऊँघने लगी और नहीं, वो बेवकूफ़ इसलिए थी वो सो गई, और जो अक्लमंद थी वो क्या कर रही थी? क्या इसलिए लिखा है? क्या ख्याल? 5 सो गई और 5 क्या कर रही थी? ये लिखा है। बल्कि क्या लिखा है? सब की सब क्या करने लगी? कितने लोगों को चर्च में नींद आती है?
ओके, सब की सब ऊँगने लगी और क्या हो गई? सो सबका एक ही हालत थी, है? चर्च में भी आप सब लोगों की क्या है? ऊँगना और सोना। लेकिन मैं ज़रा जल्दी से आगे जाऊँगा। छठी आयत में क्या लिखा है? आठवीं घाट को क्या हुआ कि देखो कौन आ गया है, Praise the Lord। सुनिएगा, क्या आपका ईमान है कि यीशु जल्द आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने लोगों का ईमान है, मुझे पता है छोटा क्या, बड़ा क्या, पढ़ा लिखा क्या, अनपढ़ क्या, सारे हाथ खड़ा करेंगे। ऐसे ही चले, कितने लोगों का ईमान है यीशु आ रहा है? अच्छा, उन सारे को कहा दो। अगर आपका ईमान नहीं कि वो आया तो फिर आप चर्च में क्या करेंगे? उसी को तो भाई जी उसी का बड़ा कंफ्यूज करते हो। लेकिन मैं आपको मुताद कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ हम सब के सब क्या हो जाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम बेवकूफ़ों की तरह जिंदगी, बल्कि हम क्या बने, कलमत बन जाए। आगे घाट को क्या हुआ? यानी इसका क्या मतलब है? दूल्हे के आगे में क्या करेंगे? क्यों? मुझे मालूम है जब मेरी शादी हुई तो हम कुछ घंटे लेट हो गए, और न्योमी जिस पॉलर पर थी तो वो पॉलर वाली कहीं से चिट्ठे तेरा ब्याह हो गया, उसकी उम्र हम जानते हो? सरकार जी क्यों? उसके इतने घंटे हो गया, पता करो मैं आना भी कि नहीं। क्या ख्याल है भाई? मैं तो जल्दी में था, घर वाले लेट कर रहे थे। दूल्हा हमेशा जल्दी में होता है, लेकिन जो शरीका है वो लेट कराना ऐसे है कि नहीं है? ओके, अच्छा, उसके सिर्फ दूल्हा जल्दी करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आधी गाय को धूप मच के देखो कौन आ गया है। 24वें बाब में, मत्ती की इंजील के 24 बाब में यीशु ने पहले कहा था कि मैं आने वाला हूँ, और 25वें बाब में यीशु ने तमसील कही। सुनिएगा, पटस का क्या है? बच्चे थोड़ा सा कि वो तहम्मुल करके बैठा है, क्योंकि वो किसी की हलाकत बल्कि चाहे सबकी तौबा तक। सुनिएगा, अगर यीशु जल्दी नहीं आ रहा तो वो सुनिएगा, इवन कलीसिया में कई लोग हैं जिनको आज भी तौबा की जरूरत है। ऐसा कि नहीं? आप कहेंगे जी कैसा? आप मुकाशवा की किताब उसका दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ के देख लें। मुकाशवा की किताब में यीशु दुनिया को, गुनाहगारों को तौबा कर नहीं कह रहा। मुकाशवा की किताब में यीशु खादिमों को और कलीसियों को तौबा का कह रहा है, और उसने कहा ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर, और पहले जैसे क्या कर। ओह माय गुडनेस। सो आज किसको तौबा की जरूरत है? खादिमों को, खिदमत करने वालों को, ईमानदारों को। कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? तौबा। अच्छा, कई इसको हली नहीं सकते हैं, वो बेवकूफ़ी को क्या समझते हैं? मैं आपको ज़रा बोर तो नहीं कर रहा। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी वो अच्छा जान पार के तौबा करके भी वो सोचते हली नहीं है, बस सब एक उसी के बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ होना फर्क बात है, हलीम होना। बेवकूफ़ी हलीमी नहीं है। घंटियों के पहले घंटियों उसका पहला बाब उसकी 27 में लिखा है हम बेवकूफ़ थे, लेकिन जब हम मसीह में आए अब हम बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि मसीह की अकल हम में मौजूद है। क्या हो सकता है कि किसी के अंदर मसीह और वो बेवकूफ़ हो? अच्छा, मैंने कई लोगों को बेवकूफ़ी करके चर्च में देखा। कई लोग क्या करते हैं, खुली आँख खुदा का। अच्छा, जो कहेगा हो तो उसकी अपनी खुली होगी। कभी आपने गौर की? और बाइबल में आपको ये कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगा। हम बाइबल को नहीं देखते कि बाइबल में क्या लिखा है। हमने जो लोगों से सुनते हैं फिर हम कहते हैं जी यीशु के जलाल के लिए क्या बचाएं? टांगों से कभी जलाल जाएगी, ये भी बेवकूफ़ी है। अच्छा, वो कई मुताबिक हो गए इतना सब बेवकूफ़ी करके वो करवाते हैं। आप बाइबल पढ़ के देखें, लिखा तुम बहुत सारा फल लाओ और इससे मेरा जलाल जाएगा। तालियां बजा देना क्या है? वो कैसा? लेकिन तालियों से जलाल जाएगा होगा। यूहन्ना की इंजील के 97वें बाब में जिसने कहा जो काम तुमने मेरे सपोर्ट किया मैंने उसे पूरा करके तेरा। अच्छा, चर्च काम कोई नहीं कर रहा, तालिए पे ताली।
जी हाँ यीशु के जलाल के लिए नो चर्च खुदा का जलाल कलीसिया से कब जाहिर होगा जब कलीसिया इरशाद आज़म की तकमील के लिए निकलेगी और उस खिदमत को पूरा करेगी तब खुदा का जलाल जाहिर होगा तब खुदा की कुदरत जाहिर होगी तब आसमान खुलेगा और मैं और आप और ये मुल्क खुदा का जलाल देखेगा तब यूहन्ना बाग खुदा का जलाल देखेगा आपके यूहन्ना बाग में कितने चर्चेज हैं मैं हर गली में चर्च देखता हूँ लेकिन अफसोस की बात है मुझे किसी गली में जलाल नजर नहीं आया ये मैं घुस कर नहीं कर रहा मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ Praise the Lord ये होगी सबका आप बाइबल उठा के देखें यीशु जहाँ कहीं जाता था कोई पोस्टर नहीं लगता था कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी लेकिन जब लोगों को पता चलता था कि यीशु वहाँ है वो जंगल को भी मंगल में तब्दील कर देता था लोग उससे पहले पहुंच जाते थे आज हम ये देखें चर्च शुरू होकर घंटा हो जाता है हम एक घंटे के बाद चर्च पहुंचते हैं बाइबल तो ये कहती है यीशु बाद में बास तक पहुंचता था लोग उससे पहले अच्छा फिर एक और अक्लमंदी हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो तू हमारे आने से पहले भी यहाँ अच्छा ये अक्लमंदी है कि बेवकूफ़ी है चल पहले अच्छा जो कहते गए ना वो अक्षर मांगे मैं आपको टीच कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ताकि मैं और आप कई जो कॉमन बेवकूफ़ियाँ वो क्या मेरे और आपके आने से पहले यीशु यहाँ पर झूठ होता है चलो हाँ या नहीं आप मुझे इसमें कोई शक नहीं खुदा हजरा क्या है लेकिन सुनेगा यीशु ने खुद कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ आपकी मौजूदगी आपकी मौजूदगी मसीह की मौजूदगी है अगर मैं और आप वहाँ नहीं होंगे तो मसीह भी नहीं होगा तो सुनिएगा आज के बाद हर एक बार आपने ये सोच के चर्च जाना अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो यीशु उस इबादत में आएगा यीशु उस इबादत में होगा और मुझे यीशु को साथ लेके जाना है आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ अच्छा कई लोग गवाइया मीटिंग में आकर देख रहे हो फिर चले जाए असल में गवाइया मीटिंग की जैसा पर उठे कोई आएगी सी है अच्छा दूसरी काम कहते हैं कि हमारे आने से पहले क्या है अगर वो मत होगा फिर आप लोगों को क्यों देख रहे हैं आप गवाइया मीटिंग के आदमी आए हैं तो आप गवाह शुरू करो सो यीशु का मौजूद होगा जहाँ दो अगर मैं और आप जमा नहीं होंगे तो यीशु सिंपल वाह क्योंकि वो मुझ में आराम नहीं रहता है मैं वो बिल्डिंग में नहीं रहता इमारत क्या में लिखा है संगाबा में वो आठ के बनाए हुए घरों में वाह ओके सो लिखा अगली रात हुई दूल्हा आ गया मैं खत्म करने लगा उस वक्त वो सब सुहानी क्या हुई उठकर अपनी मशवरे क्या एक्साइटिंग वाह प्रेज गॉड दूल्हा आ गया है अच्छा वो भी जो बेवकूफ की उन्होंने भी अपनी मशनों को क्या किया साइकिल के बच्चे पीछे कपड़े माइक क्या ख्याल है प्रेज द लॉर्ड दूल्हा आ गया है लेकिन प्रॉब्लम क्या है नो उनका मकसद अच्छा था उनकी डिजायर अच्छी थी लेकिन उन्होंने एक चीज को मिस कर दिया जस्ट वन थिंग ज़ाती सवक में वो पाक जिंदगी गुजारी थी वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी वो दूल्हे के इस्तकबाल को निकली थी उनके पास मशवरे भी थी लेकिन जब देर हुई तो क्या हो गया उनका तेल क्या आप सोच सकते सिर्फ एक चीज की कमी नहीं वो खुदा की बादशाही में दाखिल Just one thing. बस का कम एक चीज को कितना लाइट लेकर और कोई गल नहीं खुदा आवेगा कि कोई नहीं गल है हल्का या झूठ बोलने का की होया क्या ख्याल है It's very light. छोटा सा झूठ बोल दिया तो क्या हुआ छोटी सी बेईमानी कर ली तो ये बेचारी पाक भी थी दूल्हे के लिए तैयार भी थी दूल्हे के लिए निकली भी थी
صرف تیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ میں داخل تو کیا ہوا؟ لکھا اس وقت سب تمہاری اٹھ کر اپنے اپنے مچھلے درست کرنے لگے اور بیوقوفوں کا عقل مند سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی، کیونکہ ہماری مچھلیں، سنیے گا، بہت سارے ایماندار ہیں جو بجھ چکے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کو کوئی ذائقہ چاہیے جو ان سے دعائیں بھی کرائے، جو ان سے گیت بھی گوائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میں پچھلے دو مسکریہ پر ایک جگہ پہ سیمینار لے رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں پریشان نہ ہوئیے گا، لیکن چلے ہم پر ذائقہ لیک کرنے کے لیے کروا آگے کہ ٹیکس فائن، لیکن بائبل مقدس میں پر ذائقہ کرنا کوئی منسٹر نہیں ہے۔ کئی لوگ کیا پوچھیں پروفیسر ہو جی میں چرچ میں خدمت کرتا ہوں، کیا جی پرزاگی بائبل اس وقت ہے پرزاگی میں مسلم۔ سنیں گا اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں مجھے پرزاگی کا کبھی بھی موقع نہیں ملا تو سنیے گا یسوع نے ہمیں پرزاگی کرنے کے لیے بلایا، یسوع نے ہمیں گواہی سنانے کے لیے بلایا، اور گواہی سنانے کے لیے مجھے اور آپ کو خود پر بھی ضرورت نہیں ہے۔ That's simple۔ سو انہوں نے عقل مندوں سے کیا کہا؟ ہمیں کچھ کیا دو۔ اچھا یہاں میں لگے گا یہ جو عقل مند ہے یہ دنیا خود غرض ہے، سیلفش نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایماندار ہوتی ہوئی بھی انہوں نے اتنا نہیں کیا، تھوڑا سا دیر ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سیلفش نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ لیکن کیا یہ سیلفش تھی؟ ہاں میں سنیے گا، میں جو اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں، عقل مند وہ نہیں جو قرض دیتا ہے، بلکہ جو قرض دیتا ہے میں سوچتا ہوں بہت پر وہ بےوقوفی کرتا ہے۔ اور میں نے 100% پاکستان میں دیکھا جب آپ نے قرض دے دیا نا بس پھر آپ دے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن آج صبح آپ کو یہ بھی ٹیچ کرنا چاہتا ہوں، اگر سم ہو آپ کو قرض کی ضرورت پڑے گی نہیں ہے، آپ نے کسی سے قرض لے بھی لیا تو سنیے گا ضرورت ہے کہ جب خدا پہ رحم کرے ہم اس قرض کو کیا کریں، کیونکہ بائبل یہ کہتے ہیں شریر قرض لے کر، او مائی گوڈنس، اگر میں قرض لے کر واپس نہیں کرا تو میں کیا ہوں؟ ایماندار ہوں؟ اچھا بعض کا لوگوں کے پاس آ بھی جاتا ہے لیکن ان کے لیے واپس لوٹانا کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ جتنی مرضی دعائیں کرواتے ہیں، جتنی مرضی ہم یہ لگاتے ہیں، جتنی مرضی کیا یہ نہیں کہتے ہیں، تو دادا ان کے کا پہلے قرض واپس جو کہہ سکتا ہے میک یور کمٹمنٹ۔ سو انہوں نے ان سے ادھار مانگا، لیکن عقل مند نے کیا کہا؟ یہ میرے لیے اور تمہارے لیے کہاں سے جا کے لے لو۔ اچھا مزے کی بات ہے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، عقل مند تھی، ہے بیوقوف تھی لیکن پیسے ان کے، انہوں نے یہ کہا نہیں تھوڑے سے پیسے دے دو، منی، ان کے پاس پیسہ تھا لیکن انہوں نے بیوقوفی کیا کی، انہوں نے تیل خریدا۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بعض تک ہمارے پاس ہو گیا دینے کے لیے لیکن ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس پیسہ بھی تھا، یہ خرید بھی سکتی تھی لیکن انہوں نے کیا کی؟ بعض تک ہمارے پاس ہو گئے، ہم خدا کو دے، ہم دے بھی سکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ کیا کر جاتے ہیں؟ مجھے آواز نہیں، مجھے بھی آواز نہیں، ہم دین کے معاملے میں لاپرواہی کرتے کہ نہیں؟ میں اکثر لوگوں کا کہتا ہوں شکایت کو ہر مہینے ہم کتا کے جائے لکھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیبل کے پیسے رکھ کریں گے لیکن جب خدا کا ورکہ ہوں خدا کو کیا ضرورت ہے؟ دیا کرو۔ سو ان کے پاس پیسہ بھی تھا لیکن کیا ہوا؟ جب یہ تیل لینے گئی تو دیر ہو گئی اور جب واپس آئی تو کیا ہو چکا؟ دروازہ، او مائی گوڈنس، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب میں ہوگا واپس پہنچے اور دروازہ بند ہو؟ سنیں گا آدمی بیچارہ آپ کے لیے 24 گھنٹے چرچ کا دروازہ کھلا رکھے گا لیکن ایک وقت آئے گا جب اسی دروازوں کو بند کرے گا۔ جب نوح کا طوفان آیا تو خدا کا نوح تو اپنے خاندان کو لے کے کہاں چلا جا، اور خدا کا دروازہ تو بند نہیں کرے گا، دروازہ بند کرے گا۔
और लिखा उसके भंग किए हुए को ओ माय, जितनी मर्जी फिर आप हालेलुया। गैस भागे भी बोले गीत भी गा मत हो गए खुदा, खुदा देगा नहीं। आप ये से आप गीत भी गाएंगे खुदा हो गए, खुदा देगा नो। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? उसने लिखा है उसने दरवाजा बंद किया, उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने क्या कहा? जब वो बोल लेंगे चाली के तो दूल्हा आप पहुंचा जो तैयार थी, जो असला जो मैसेज है मैं यहाँ सिंपल कहने लगा, आर यू रेडी? मैसेज क्या है? क्या आप तैयार हैं? सुनिएगा, हम चर्च आने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन आज सुबह मैं सिंपल बात करना चाहता हूँ, क्या आप मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? आप जल्दी में कहेंगे हाँ। सुबह आने से पहले घंटा किसने दुआ वेरी फ्यू, प्रेज गॉड। सो जिन्होंने दुआ नहीं की, आर यू रेडी? हमने चर्च होने के लिए आधा घंटा तैयारी की, घंटा कपड़े प्रेस किए, शावर लिया, थोड़ा बहुत शेव की, मेकअप किया, तैयारी की ना, और हम कहाँ आ गए? लेकिन जब यीशु आएगा, क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयारी की? ये निकली को तैयार हो गई थी, लेकिन जब देर हुई तो ये तेल लेने गई, और उतनी देर में क्या आ गया? और क्या लिखा 10वीं आयत में? और जब हम बोलेंगे जा रही थी तो खुदा पहुंचो, जो प्यार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में। वाह, सो खुदा की भाषा में कौन जाएगा? कौन जाएगा? ओके, जहाँ जो तेल है, मैं सिंपल जो कहने लगा, मैंने शुरू में कहा था, मैं और आप उनका जाके तेल क्या कर लो? मुंह ले लो। तो सुनिएगा, हम कहते हैं रूल कुदस का जिक्र है, बहुत सारे लोगों का ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि ये रूल कुदस को जाहिर करता है, ये मसीह को जाहिर करता है। लेकिन मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, मैं ये सोच रहा था, यू कैन नॉट बाय द होली घोस्ट, यू कैन नॉट बाय द अनॉइंटिंग। आज तो तेल 10-10 रुपए की बोतलों में बिकता है, ऐसा है कि नहीं? मैं पिछले दिनों किसी मुल्क में था, मैं पिछले अमेरिका में था, मार्च में, और मैं चर्च में क्लास सुना था, और वो पास्टर तेल की बोतल लिया और उसने कहा ये तेल इस्राएल से आया है, ये अनॉइंटिंग ऑयल है। मैंने कहा तेरे पास तेल में मसा है, मेरी जिंदगी में खुदा का रूह और उसका मसा है, और ये मसा यरूशलेम से नहीं, ये मसा आसमान से आया है, रूह की बस लेकर आया। हम 1 रुपए का तेल लगा के लोगों को क्या कर रहे होते? मसा। ऐसा है कि नहीं? कईयों का तेल भी बिक रहा है, कई मिनिस्ट्रियाँ क्या बेच रही हैं, और हम इतने सादा लोग हैं, हम भाग के तेल खरीदते हैं और तेल लेके जाते हैं आपके लिए, जिंदगी को बिगड़ी कर रहे हैं। ओके, के साथ में जो आपको रेफरेंस करके बहस करो नहीं जाना चाहता, वहाँ ये नहीं लिखा तेल पे दुआ करो, नो, युगों के साथ में लिखा तेल मल के उस बीमार में क्या करो? हम किस पे दुआएं करवाते रहते? सो यहाँ भी कमी किस चीज की थी? सुनिएगा, तेल की कमी नहीं थी, उनकी बेवकूफी थी। तेल तो दस्तयाब था, लेकिन वो तेल ना। सो तेल किस चीज को जाहिर करके मैं खत्म करने लगा। तेल यहाँ जो प्रेजेंट कर रहा है सिंपल, वो है प्रेपरेशन, तैयारी। इसे समझ आ गई कि नहीं? वो निकली तो थी, वो इस्तेमाल करना तो चाहती थी, लेकिन वो वेल प्रिपेयर्ड मछली भी उनके पास थी, वो कुआरियां भी थी, लेकिन 5 बेवकूफ क्यों गिनी गई? They were not well prepared, वो मुकम्मल तौर पे तैयार। सो खुदा ने यीशु ने तमसील कही, और क्यों कही? सुनेगा, क्योंकि कई लोग हैं जो चर्च भी आ गए हैं, जो इबादतें कर रहे हैं, गीत भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई लोग क्या हो जाए? क्या हो जाएंगे? मिस। वो खुदा की बादशाही को क्या कर देंगे? तो अब फिर मुझे और आपको क्या करना? मुझे और आपको क्या करना? क्या करना हमें? ओके, आखिरी आयत 11वीं आयत में क्या लिखा है? फिर वो बाकी जो कुमारियाँ भी आई और कहने लगी खुदावन हमारे लिए क्या खोल। उसने जवाब उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमको
यहाँ लफ्ज जो इसको मालूम है ना, मैं तुमको नहीं जानता, इसका मतलब मालूम है क्या है? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु ने कहा ये जगह, आखिरी आयत में यीशु ने कैसे ये तुमसे खत्म की, बस जाते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस चर्च। इट्स टाइम टू वेक अप। चर्च ये जागने का वक्त है, ये बेकार होने का वक्त है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है, हर इतवार हम 2 घंटे के लिए जागते हैं और पूरा हफ्ता हम रूहानी तौर पर क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। कोई दुआ या जिंदगी नहीं है, कोई पर्सनल वर्शिप नहीं है, कोई पर्सनल खुदा के साथ तल्लुक नहीं है। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, कलीसिया, इट्स टाइम टू वेक अप। हमें जागना है। इसलिए यीशु ने गेतसेमनी में क्या कहा, जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। हमें जागना है। आपको मालूम है समसून प्रॉब्लम में कब गया? जब वो दलाला की गोद में सड़ के, वो खुदा का सूरमा अनॉइंटेड, क्या ख्याल है? वाह, एक ही शख्स ने हजारों लोगों को मार दिया गगन के चबूतरे से। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, द अनॉइंटेड वन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? दलाला की गोद में, ओ माय गॉड। मैं पिछले दिनों उस पर स्टडी कर रहा था, दलाला का मतलब क्या है? सुनिएगा, दलाला का मतलब है रिलैक्स। दलाला का मतलब क्या है? उर्दू में रिलैक्स को आराम ही कहेंगे, आराम की जगह। सो समसून दलाला की गोद में क्या कर रहा था? सोया हुआ था, और दुश्मन ने आके उसके क्या कर दिए। आज कलीसिया दुनिया में सर रख के क्या कर रही है, और हर एक बार पर जाएगा तो कलीसिया को क्या करना पड़ेगा, खड़े हो जाए। अच्छा, कहीं खड़ो के भी सुट्टे होंगे, क्योंकि खात्मा से है कि नहीं? वर्शिप करने वाले भाई क्या लगा रहे होते हैं कि रूह और सच्चाई में क्या करें, वे रूह होएगा तो प्लस किस करेंगे, क्या ख्याल है? सो नंबर 1, वी नीड टू प्रिपेयर। हमें तैयार होने की क्या है? और फिर दूसरा काम हमें क्या करना है? जागो, क्योंकि तुम उस घड़ी को। आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आर यू रेडी? क्या आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर वो आज रात ही आ जाए, आर यू रेडी टू गो? इसका मतलब क्या है? खुदा ने यीशु ने कहा तुम्हें हर वक्त क्या रहने की जरूरत है। माइंडली तौर पर तुम्हें, मैं फेसबुक भेजता हूँ या कुछ और ही करता हूँ, यीशु आ जाए तो फिर क्या होगा? खुदा मैं तो चर्च में क्वायर में था, खुदा मैं तो संडे स्कूल में बच्चों को सिखाती थी, डोंट क्लोज। खुदा मैं चर्च में कलाम सुनाता था, डोंट क्लोज। क्या करा? क्या यीशु ने उनके रोने चलाने को सुनकर दरवाजा खोल दिया? ओह माय गॉडनेस, यीशु हमको निकली थी, हमको इंतजार कर रही थी, कुछ को हम पे गए कर, कुछ को। कई लोग कहते हैं जी कुछ नहीं ना, जो कुछ मर्जी करो, खुदा क्या करेगा? हाँ, ये गलत बना दी है। अभी रिसेंटली मैं और हमारी फैमिली हम लड़कियों का साथ घर पर स्टडी कर रहे थे, और वहाँ पर उसने कहा अगर कोई फरिश्ता या कोई और आके भी कोई दूसरी खुशखबरी सुनाए तो उसका यकीन ना करें। ओह माय गॉडनेस। और दूसरा कहते उसके 11वें बाब में पौलुस ने कहा एंड अगर क्राइस्ट एंड अगर स्पिरिट एंड अगर गॉस्पेल। और मैं नियोमी को कहता मैं यार मैं मैसेज क्या करने लगा हूँ, एंड अगर गॉस्पेल। आज पता कौन सी मुनादी होगी? वर्कर किसको चाहिए, गाड़ी किसको चाहिए, वीजा किसको चाहिए, जॉब किसको चाहिए, भाई के मुल्क में किसने जाना है। लेकिन मैं सुबह को ये कहना चाहता हूँ, हाँ ये हमारी ज़रूरतें हैं, खुदा मेरी और आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन सुनिएगा, वो मुझे और आपको बंगले देने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ मुझे और आपको वीजे देने के लिए नहीं आया, वो मुझे और आपको सिर्फ बिल्डिंगें देने के लिए नहीं आया, वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। और उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और दूसरे की जिंदगी पाओ। वो जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी देने के लिए आया है। लेकिन हमें पता चला खागम इसलिए चंगी लगती है जगह वीजे के जो हमें गलत फैमिली में करती है। लेकिन आज सुबह आपकी मदद करना चाहता हूँ, सुनिएगा, जो मसीह का होता है उसके अंदर दुनिया और दुनिया की चीज़ों का कभी कोई लालच नहीं है।
आमेन। अगर आपको बरकत ना भी मिले, सुनिएगा, praise the Lord, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। Glory to be God। क्या हकीकी वर्शिपर कौन है? हकीकी ईमानदार कौन है? हकीकी खुदा की इबादत करने वाला कौन है? तो सुनिएगा, हकीकी वर्शिपर वो है जो ये कहे, खुदा तू मुझे बरकत दे या ना दे, मैं फिर भी तेरी तमजीद करूंगा। praise the Lord, तू मुझे बरकत दे या ना दे, मैं फिर भी तेरी इबादत करूंगा। मैं तेरी दुआ, मैं तेरे ज़ुल्फ़ान गुज़ारूंगा। तू मुझे जॉब दे या ना दे, मैं फिर भी इबादत करूंगा, मैं फिर भी खिदमत करूंगा। तू खाने को दे या ना दे, तू मुझे शिफा दे या ना दे, मैं फिर भी तेरे नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी देता रहूंगा। लेकिन सुनिएगा, और आज सुबह गौर कीजिएगा, आप 10 आदमियों में से कहाँ आ गए? अकलमंद है या बेवकूफ? हो सकता है आपने अपनी बच्चों को दुरुस्त को कर लिया है, जिंदगी दुरुस्त को हो गई है, आप खिदमत में भी आ गए हैं, लेकिन क्या आपके पास तेल है? और मैंने सिंपल बताया, क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपका मसीह के साथ गलत है? क्या आप उसके खौफ में और पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें? क्या आप हर रोज दुआ में, कैसे मैं क्या रहूँगा? सुनेगा, सिर्फ दुआ ही एक तरीका है जिसके जरिए हम हर वक्त क्या रह सकते हैं, देखा। और उसने क्या कहा, हर वक्त हर जगह रूम में क्या करते रहो, सिर्फ इतवार को चर्च आकर दुआ करो, सिर्फ सुबह कहकर दुआ करो। उसने कहा हर वक्त हर जगह क्या करते रहो, पाक हाथ। कैसे हाथ? सुनिएगा, जब मैं चर्च में हाथ उठा रहा हूँ, क्या ये पाक हाथ है? इस बात को बोल में, अगर मैं इसी हाथों से मोबाइल का मिस यूज कर रहा हूँ तो हाथ पाक है? कोई देखे या ना देखे, लेकिन लश्करों का खुदा उसे के खुदा से पहले मैं अपने हाथ उठाऊं, इन हाथों को पाक कर, मेरे दिल को पाक कर। खुदा शायद मैंने बेवकूफ कुमारियों की तरह जिंदगी गुजारा था, लेकिन मैं जान गया कि तू जल्द आने वाला है। आमीन। आज के बाद हर वक्त क्या रहूँगा, जागता रहूँगा और क्या रहूँगा, क्योंकि तू किसी वक्त भी किसी घड़ी आ सकता है। और मैं इस बात के लिए क्या हूँ, जब तू आएगा मैं उड़ कर बादलों में फैसले करूँगा। आमीन। सुनिएगा, सिर्फ गीत गाकर हम बादशाह में दखल, सिर्फ मिस्त्री करके हम खुदा की भाषा में दखल, जरूरत है कि वचनों के साथ क्या हो, यानी हम हर वक्त रूहानी, जिस्मानी, मेंटली खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए क्या हो। Are you ready? अगर यही है, कहीं हमसे बेवकूफ़ी, लापरवाही हुई है, आए अपने हाथ जिस्मान को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। ये आपका खुदा का मामला है। आप कह सकते हैं, खुदा मैं बेवकूफ़ कुमारियों की तरह नहीं बनना चाहता, चाहती मैं अक्लमंद बनना चाहता। खुदा मैं सिर्फ निकलूंगी नहीं, मैं मस्जिद शमे लेके ये जाऊंगी, बल्कि हम तेल को भी रखेंगे, हम क्या रहेंगे हर तरह के हालात में, हर वक्त हर तरह के हालात में हम तेरी आमद के लिए, तेरी बादशाही के लिए, आसमान पर जाने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए हम हर वक्त क्या रहेंगे। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम बेवकूफ कुमारियों की तरह बने, लेकिन आपने फैसला करना है। उसने मेरे आपके साथ गुलाम किया है और उसे कि खुदा मैं